मवेशी तस्करी मामले में आरोपी अनुव्रत मंडल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। आज आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने ईडी के वकील से यह जानना चाहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के आधार कैसे कर रहे हैं। इस बारे में आज ईडी द्वारा कई दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। इस वजह से इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को मुकर्रर की गई है। इस बारे में ईडी के वकील ने जेनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया और कहा कि उस कन्वेंशन के बाद केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के बल पर ईडी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि आज उनके पास दस्तावेज नहीं थे, इस वजह से इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को फिर होगी। তো যে ইয়ে হলো তো অথরাই যে জায়গায় হলো তো আগামী ডেটে আপনি কি বলবেন এই বিষয়ে? আরে আগে ওনারা বলুক, আগে ওনারা স্যাটিসফাই করুক অ্যাপ্লিকেশনের মেনটেনেবিলিটি, অ্যাপ্লিকেশন অ্যালাউ হওয়া উচিত কিনা, তারপর তো আমাদের প্রশ্ন আসবে। ওনাদের হিয়ারিং এখন কমপ্লিট হয়নি, বলতে পারলেন কেন না জাম্প করবে? উনি নেক্সট ডেটে বলুন, ক্লারিফাই করবেন। নেক্সট কবে ডেট হয়েছে? সেটা সেপ্টেম্বরের 2 তারিখে। আমরা এখানে যে স্পেশাল সিবিআই কেস 1 অফ 21 যে কেসটা রয়েছে সেই কেসটা পিএলএমএ কোর্টে ট্রান্সফার করার জন্য আগের ডেটে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম অ্যাজ পার প্রভিশন সেকশন 44(1)(3) পিএলএমএ অ্যাক্ট। আজকে তার হিয়ারিং ছিল এবং আদার্স যারা আছেন সিবিআই এবং অন্যান্য অ্যাকিউজ পার্সন যারা আছেন তাদেরও অবজেকশন ফাইল করার ছিল। সেক্ষেত্রে তারা আজকে কোনো রিটেন অবজেকশন ফাইল করেনি। আজকে আমরা আমাদের তরফ থেকে আমরা পার্ট হার্ট করেছি ম্যাটারটা। সেখানে জজ সাহেব জানতে চেয়েছিল যে ইডিকে কিভাবে পাওয়ার দেওয়া হলো, আচ্ছা, যে ইডি এই মানি লন্ডারিংয়ের চেষ্টা করতে পারে। সেখানে ইলাবোরেটলি যে ইতিহাস আছে যে জেনেভা কনভেনশনে নার্কোটিক ড্রাগসের ওপরে যেসব ইলিগালি মানির ট্রাফিক হচ্ছিল সেই জায়গা থেকে কয়েকটি দেশ মিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে এই ব্যাপারে মানি লন্ডারিংয়ের একটা অ্যাক্ট হওয়া উচিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই অ্যাক্টটা তৈরি হলো প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, এবং সেখানে গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশান এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটকে পাওয়ার দেওয়া হলো যে তুমি এই মানি লন্ডারিংয়ের কেসগুলো ইউ আর দ্য অথরিটি, তুমি এই কেসগুলো করতে পারবে। ইন সাপোর্ট অফ দ্যাট সেই জায়গাটা জজ সাহেব জানতে চাইলেন। ওই জায়গাটা আপনি যেটা বললেন তার পক্ষে আপনি আমাকে পেপারস দেখিয়ে স্যাটিসফাই করুন। সেই জায়গা থেকে আজকে আমার কাছে পেপারস ছিল না দেখাবার মতো, সেই জন্য আজকে পার্ট হার্ট হয়েছে ম্যাটার। পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে ফার্দার হয়েছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबरे। मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति आज आसनसोल जिला अस्पताल से भाग निकला। उसका आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह वह सुरक्षा कर्मी को मारकर अस्पताल से निकल गया और जब उसका पीछा किया गया तो वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। लाख कोशिशों के बावजूद जब उसे नीचे उतारा नहीं जा सका तो आखिरकार दमकल को इसकी खबर दी गई। दमकल के अधिकारी मौके पर आए और काफी जद्दोजहद के बाद उस व्यक्ति को पेड़ से उतारा जा सका। घटना से पूरे आसनसोल जिला अस्पताल परिसर में खलबली मच गई थी। এটা কালকে তো দিয়ে গেছিল, এটা তো আরপিএফ থেকে দিয়ে গেছিলো এখানে জমা পরশু দিন। কালকে সকালবেলা ঝামেলা করেছে, ইঞ্জেকশন দেওয়া ছিল, ঘুমাচ্ছিল। ভোর রাতে সিকিউরিটিকে মেরে রুম বেরিয়ে গেছে, আটকানো যায়নি। সকাল দিকে আজকে গাছে চেপেছিল, নিয়ে তারপর এখান মানে পিছন তো গাছে চেপে গেছে। কতদিন লাগলো? তো এতক্ষণ লাগলো, সকাল থেকে তো এতক্ষণ ধরে দমকল আসলো, তারপর তো নামালো। আপনার নাম? আমার নাম সুজা বোস। একটা মেন্টালি পেশেন্ট গাছে চেপে গেছিলো, ওকে নামাতে গেছিলাম। ওকে নামাতে যাওয়াতে আমাকে জল ঢেলে পরে আমাকে ঢাকলে পরে আমার গাছ থেকে পড়ে যায়, তার জন্য পা ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। কি হয়েছিল মানে একটা গাছে একটা মেন্টালি ডিসঅর্ডার একটা মানুষ আর কি উঠে গেছিলো, তো আমাদেরকে কল করেছিল রেস্কিউ করার জন্য। তো আমরা লেটার লাগিয়ে ওনাকে রেস্কিউ করি। কত দেরি লাগলো? আমরা ইয়ে করে মোটামুটি 8 ঘন্টা মতো লাগলো।
আমার নাম বিবেক গোড়াই, সাব অফিসার আসানসোল ফ্লাশ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबरे। आसनसोल नगर निगम के 15 नंबर वार्ड इलाके के सिंदरेली क्षेत्र में एक मैदान की चारों ओर बाउंड्री बनाने को लेकर विवाद हो गया है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा 27 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से इस बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि यह स्थानीय मिश्र परिवार की पुश्तैनी जमीन है और इस जमीन को लेकर अदालत में मामला भी चल रहा है। यह जमीन सिंदरेली को इस शर्त पर दी गई थी कि वह कारखाने के विकास के लिए यहाँ पर कुछ काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह जमीन वापस उनके पुराने मालिकों के पास आ जाएगी, लेकिन चौकी कारखाने के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ तो यह जमीन पर मिश्रा परिवार का ही मालिकाना हक है। इनका कहना है कि अदालत में मामला लंबित भी है, लेकिन इसी बीच आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा यहां पर बाउंड्री बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका वह लोग विरोध करते हैं। इनका कहना है कि इस मैदान पर उनके मवेशी चरने आते हैं, यहीं पर उनके धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। ऐसे में अगर इस जमीन के चारों ओर बाउंड्री बना दी जाएगी तो उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। আজকে হলো আমাদের গ্রামের জায়গা, মানে আমাদের নিজেদের প্রপার্টি। আমরা এইখানে জয়দেব মণ্ডলকে আমরা মাঠ ঘেরাও করতে দিই নাই। এই মাঠে আমাদের গরু মরু চলে, আমাদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়, সব কিছু হয়। এই পাশে আমাদের সব 30 বিঘা মতো জায়গা আছে। হ্যাঁ, এইখানটা যদি ঘেরে যায় আমাদের গরু বাছুর গবাদি পশু কোথায় এইখানে যাবে? অনুষ্ঠান আমরা করি এইখানে। আমাদের 12 বছরের 12টা গ্রামের কনজ্জা সমাজের কীর্তনটা এইখানে হবে, হরিনাম সংকীর্তন 1 লাখ লোক হবে। এইটা আমাদের গরুর বাথান, এইখান থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের আমাদের রাস্তা, এইখান থেকে 15 ফুট 20 ফুটের রাস্তা। এটা না ভেস্টের জায়গা। সালে আপনার হাইকোর্টে লিকুইডের চলে যায়, এর মধ্যে আমরা কেসে হাইকোর্টে পার্টিসিপেট হই, আমাদের ল্যান্ড অথেন্টিক ডকুমেন্ট আমরা সাবমিট করি। এগুলো বাইফোর্সিভাবে কোর্টকে অমান্য করে এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করে বাইফোর্সিভাবে এবার দখলদারি নিতে আসছে। এগুলো সব রেকর্ড হয়। কে করছে দখলদারি? দখলদারি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে বাইফোর্সিভাবে করছে, যেভাবে স্টেডিয়াম করছিল আরও জমি এভাবে করছে। এডিডিকে হাইকোর্টে দেয়নি নিলামে, এটা সেলে হয়নি, পেন্ডিং হয়ে আছে। এই জমিগুলো কার? এই জমিগুলো আমাদের গোটা মিশ্র ফ্যামিলির, মিশ্র আমাদের গোটা নডিয়া মিশ্রদের এবং প্রদীপ মিশ্র ল্যান্ড। কি হলো হঠাৎ? আমাদের এই জমি হাইকোর্টে 1992 সালে লিকুইডেশনে যায়। লিকুইডেশনে যাওয়ার পরে একটা লিকুইডেশনে আমরা ওখানে হাইকোর্টে জজ সন্দীপ ব্যানার্জির আমরা 16 নম্বরেতে আমরা পার্টিসিপেট হই কেসে। সেই কেসে পার্টি আজ তো এই মামলা আমাদের কেস চলছে এবং সেল পেন্ডিং করেছি আমরা। আমাদের ব্যারিস্টার দাঁড়িয়ে আমরা সেগুলো আমরা জানালাম যে আমাদের সম্পত্তি এখানে 3টা ভাগে জমি আছে। একটা যেগুলো কোয়ার্টার সেগুলো স্টেট গভর্নমেন্ট, এ ব্লক, বি ব্লক, সি ব্লক, ডি ব্লক, ই ব্লক। আর যেটা আপনার আমাদের প্রাইভেট ল্যান্ড আর সাইকেল পার্সন ল্যান্ড, এই নডিয়া মৌজার মধ্যে জমি। তার মধ্যে আমাদের এই জমি বাই ফোর্সলিভাবে ইনলিগালভাবে একজন আইনমন্ত্রী সে কোর্টকে অমান্য করে, কোর্টকে ভয়েড করে এবং কোর্ট কর্ণম করে আজকে আমাদের এই জমি বাই ফোর্সলিভাবে দখল করার জন্য। बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल भरवाने आए एक बाइक सवार को परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार की दोपहर दुर्गापुर निवासी सौरभ दास भगत सिंह के पास स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए थे। सौरभ का आरोप है कि पेट्रोल पंप से तेल लेने के बाद कार रुकी। कथित तौर पर स्थानीय गैरेज में ले जाने पर उसने कहा कि तेल में पानी है। इसके बाद पंप पर आकर कार में तेल डालते देखा तो पेट्रोल का रंग बदल गया और तेल में पानी था। इसके बाद बाइक सवार पेट्रोल पंप कर्मियों से भिड़ गए। सिटी सेंटर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पंप कर्मी शिल्पी दास का दावा है कि अब जो नई किस्म का पेट्रोल आ रहा है उसका रंग एक जैसा ही है।
हो सकता है बाइक सवार की बाइक में पानी हो। हालांकि भ्रम से बचने के लिए पैसे वापस कर दिए गए। इस घटना से दुर्गापुर में सनसनी फैल गई है। कुछ दिन पहले दुर्गापुर के गांधी मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप पर ऐसी घटना घटी थी। शहर के बाइक सवार अब अपनी रोजमर्रा के साथी बाइक में तेल भराने को लेकर संशय में है। সমস্যাটা বলতে আমি ডিউটি যাওয়ার পথে গাড়ি নিয়ে আমি ফিরছিলাম, তখন আমার গাড়ি পুরো ড্রাই হয়ে গেছিলো। তো আমি গাড়িটাকে ঠিলে ঠিলে পেট্রোল পাম্পে এলাম, কোনো কিন্তু গাড়িতে তেল বা জলের কোনো আওয়াজও ছিল না, কিচ্ছু না। এখান থেকে আমি 330 টাকা তেল ভরেছিলাম। তেল ভরার পর যখন আমি গাড়ি নিয়ে স্টার্ট করছি, আমার কিছুতেই স্টার্ট হচ্ছে না। 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ধরে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছে না। আমি পাশে এই সামনেই পাশে যখন গ্যারেজে গেলাম, গ্যারেজে গিয়ে ও চেক করার পরে আমাকে ডাইরেক্ট বলছে এটা তেল নেই, এতে ভেজাল আছে। তো আমি গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসলাম, এদেরকে প্রথমে এসে বললাম, এরা সেটাকে ভালোভাবে মানলো না। তারপরে গিয়ে আমি ওই সাইডে গিয়ে যখন বার করছি, দেখছি ওরকম আমার তেলে জলে বেরোচ্ছে। আর তেল ওইটা লাল কালারের পেট্রোল, আমি আজ অব্দি কোথাও দেখিনি, ফার্স্ট টাইম এখানেই দেখলাম লাল কালার। এরকম কি শুধু তোমার সাথে হয়েছে না না, আরও যতজন বাইকে যতজন বার করছিল সবারই লাল কালারের পেট্রোলই বেরোচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল বলছে ওরা ইথানল পেট্রোল না কি বলছে। এটা কি কোন পেট্রোল পাম্প এটা? এইটা হলো ভারত পেট্রোলিয়াম, ভগৎ সিংয়ের সামনে। কি নাম তোমার? আমার নাম সৌরভ দাস। লাস্টে কি বলো ওরা? লাস্টে যেটা বলছে যে আমার জন্য ক্ষতিপূরণটা আমার দিয়ে দেবে, 330 টাকার যে টাকাটা আমি বলেছিলাম ওইটা দিয়ে দেবে। পুলিশ এসেছিল, কিন্তু পুলিশ তো বলে গেল নিজেদের মধ্যে মিটমাট করার কথা। কিন্তু দেখুন, আমি চাই যে এইটা যেন একটা পর্যবেক্ষণ হয় ঠিকঠাক করে, আমি এটাই চাই। কারণ আজকে আমার সাথে ঘটেছে, 2 দিন বাদে অন্য কারোর সাথেও ঘটতে। কি নাম তোমার? আমার নাম সৌরভ দাস। কি নাম? সৌরভ দাস। কি করো তুমি? আমি মার্কেটিংয়ে কাজ করি। আবার কি বলছে না ये है वो है, बात ही नहीं समझते, वो खुद को बात करना बोलो, दूसरे को, इसी को, मीडिया को, सबको बुला के लेके आ रहा। पहले देखो আমার গাড়ি পুরো ড্রাই ছিল। আমি তেল ভরলাম 330 টাকা, ঠিক আছে। এই যেটা স্লিপ, তেল ভরার পর আমার গাড়ি কিছুতেই স্টার্ট হচ্ছে না। আমি সামনের গ্যারেজে নিয়ে গেলাম, অনেকক্ষণ এখানে ট্রাই করলাম, স্টার্ট হচ্ছে না। গ্যারেজে নিয়ে গেলাম, ও বাইক খুলতেই ও তো ডাইরেক্ট বন্ধ শুনে বলে দিল, বলছে যে এতে তো কেরোসিন মেশানো আছে। হ্যাঁ, আমি এখানে নিয়ে আসলাম। এখানে এসে যখন আমি বললাম ইনাদেরকে, ইনারা কী বললেন, আমাকে একটা কাঁচের জারের মধ্যে দেখালো, এরকম পেট্রোল বার করে আমাকে দেখালো, দেখো সব ঠিকঠাক বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। এমনকি ইনাদের একজন ম্যানেজার ছিল, সেই আমাকে বলছে যে 1 ফোঁটা জল নাকি পেট্রোলে মিশলে নাকি পেট্রোলটা আস্তে আস্তে জলে পরিণত হবে। আমার কথা হলো, এরকমভাবে যদি পেট্রোল দেওয়া হয়, যেটা বর্ষাকাল গাড়িতে তো 1 ফোঁটা হলেও জল পড়বে, তাহলে আমার কথা হলো আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, তাহলে ভরতাম না এখানে। আর আজকে আমার গাড়িটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, এখন জানি না আমার গাড়িটা কখন স্টার্ট হবে। সবগুলো আছে, সবগুলোতে এই তো দেখুন না, যতগুলো বার করা হচ্ছে, এমনকি ওখানে গাড়ি কি বলছে বলুন তো স্যার, যে 1 ফোঁটা তেল মানে 1 ফোঁটা যদি জল পড়ে না তেলটার মধ্যে, বলছে আরো 10 ফোঁটা নাকি জল হয়ে যাবে, ওই তেলটাই জল। কিন্তু স্যার এইটা তো তেলের একটা সমস্যা হয়েছিল, তারা বলছে যে এখানে তেলের সাথে জল মেশানো হয়েছে, এরকম একটা অভিযোগ করছে, কি বলবেন? সেটা ওনাদের ট্যাঙ্কে আগে থেকে জল ছিল, তারপর তেলটা নিয়েছে, তাই জলে তেলে মিশে গেছে। কারণ আমাদের এখান থেকে টেস্ট করে দেখানো হয়েছে কোনো তেলে জল নেই, আপনারাও দেখে নিতে পারেন। বলছে 5-6 জন মিলে কমপ্লেন করছে, তাদের প্রত্যেকের ট্যাঙ্কে কি জল ছিল? তাহলে 5-6 জন মিলে কমপ্লেন করেনি, আমাদের এখানে একটাই কমপ্লেন এসছে, তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সাথে সাথে, সে এবার লোকজন জড়ো করে সেটা ইস্যু বানাচ্ছে। তেলের যে কালারটা তাহলে E20 একবার পোস্টারটা দেখিয়ে দিন ওইদিকে। একটা আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে ডিক্লেয়ার করেছে E20 এবার থেকে ইউজ করা হবে, তাহলে ইঞ্জিনটা ভালো থাকবে, ন্যাচারালভাবে তৈরি হবে তেলটা। তো ওইটাই আমাদের পাম্পে দেওয়া হয়েছে E20। ওই তেলটার রঙই পিঙ্কিশ রেড, তাই এখন পেট্রোল রেডি আসবে। সেটা কি সব পাম্পেই না? আমাদের BPCL এ দেওয়া হয়েছে, এবার সব পাম্পের কথা আমি বলতে পারবো না, আমাদের পাম্পে এখন এটাই আসবে। কিন্তু আপনাদের যদি কোনো ভুল নাই থাকে, আপনারা টাকা ফেরত দিলেন কেন?
সেটা ওই জল মেশানো হয়েছে, ওটা ওরা বড় ইস্যু বানাচ্ছিল, তাই সেটা টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। অন্য কাউকে তো টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। আপনাদের যখন ভুল নেই তখন আপনাদের তরফ থেকে কেন ফেরত দেওয়া হবে? আপনারা তো বলছেন ইথানল দিচ্ছিলেন, ওটার মধ্যে কোনো জল নেই, আপনি টেস্টও করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাহলে কেন পেয়েছেন? আরেকটা ব্যাপার যেটা বলছি, যেটা হলো যে 1 ফোঁটা জল থাকলে নাকি আরও জল বেড়ে যায়, এটা কি ব্যাপার? ওটার এখন ওইটা ওরকমই আসবে, E20টা ওরকমই। তাহলে সেটা তো গাড়ির ট্যাঙ্ক ছাড়া আপনাদের ট্যাঙ্কেও তো হতে পারে। হ্যাঁ, তো ওই দেখুন ওইটা আমার গাড়ি দাঁড় করানো আছে, আমরা ওটাই ভরছি, আমাদের কোনো না প্রবলেম না 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 সেটা নয়, তা কাস্টমার তো কমপ্লেন করছে, আপনাদের না হতে পারে, বাট কাস্টমার কমপ্লেন করছে এখানে, সেটাই। কাস্টমার কিছুই কমপ্লেন করছে না, একটা ইস্যু পেয়েছে সেটা নিয়ে কাস্টমার ধরে বসে আছে। আপনাদের ভুল না থাকা সত্ত্বেও টাকা ফেরত দিলেন কেন? টাকা ফেরত ওইটা ওরা ইস্যু ঝামেলা করছিল, তাই ঝামেলাটা বন্ধ করার জন্য টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে বোঝাতে পারলেন না? তাদেরকে বুঝছে না, তারা অবুঝ, তারা অশিক্ষিত, তাই। যে আসবে সেইটাই অবশ্যই। কি নাম আপনার? আমার নাম আপনি এটা চেয়েছেন, আমি বলে দিচ্ছি আমার নাম। না, আপনার নাম কি? নামটা কি বলতে হবে তো? বলবো না। হ্যাঁ, নাম বলবো। নাম কেন বলবেন না? তাহলে আপনি পাম্পে আসবেন, শিল্পী দাস। হ্যাঁ সেটা বলুন। কি নাম? এই পাম্পের নামটা কি? भारत पेट्रोलियम BPCL सुपर फिलिंग स्टेशन। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। पर्यावरण को हरा भरा रखने हेतु तो पश्चिम बंगाल के सभी डीएवी स्कूलों में पौधा का वितरण किया गया। डीएवी मॉडल स्कूल दुर्गापुर में आज वेद प्रचार सप्ताह के अंतर्गत डीएवी मॉडल स्कूल दुर्गापुर और रविंद्र सरोवर फ्रेंड फोरम कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण का मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनजीओ से प्राप्त 17,000 पौधे में से 8,000 पौधे का निःशुल्क वितरण किया गया। डीएवी पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 स्कूलों के 30,000 से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों के लिए यह कार्यक्रम किया गया था। डीएवी मॉडल स्कूल दुर्गापुर से पांडवेश्वर डीएवी, निमचा डीएवी, बांकुड़ा डीएवी और दुबराजपुर डीएवी को 2-2 हजार पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर डीएवी पश्चिम बंगाल संस्थान के क्षेत्रीय अधिकारी पापिया मुखर्जी ने रविंद्र सरोवर फ्रेंड फोरम कोलकाता से आगत एनजीओ के सदस्यों RR अग्रवाल, मुकेश पारिक, रमेश जजोदिया, SS राजपूत, अशोक सिंह, OP कनोडिया, रमेश शोभाशरिया, रंजीत नाथ, रेवा जजोदिया को वैदिक उत्तरीय और मोमेंट और स्वामी दयानंद रचित सतत प्रकाश ग्रंथ प्रदान किया गया। विद्यालय परिसर में ही एनजीओ के सदस्यों सहित पापिया मुखर्जी ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर एनजीओ की तरफ से पापिया मुखर्जी को एनजीओ की पत्रिका प्रदान किया गया। पापिया मुखर्जी ने अपने संबोधन में PVTV के माध्यम से ये बातें कहीं। To adopt and care for a sapling, nurturing it into a strong and healthy tree to contribute positively to our environment and the planet. Thank you. दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096।
ईसीएल सातग्राम एरिया क्षेत्र के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित सातग्राम इंक्लाइन में एआईटीयूसी की ओर से शनिवार की सुबह विभिन्न मांगों को लेकर मैनेजमेंट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर यहां के मैनेजमेंट को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान इस संगठन से जुड़े एक नेता जय किशन मिश्रा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज सातग्राम इंक्लाइन में हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड जो दिए थे मई महीना में, मैनेजमेंट अभी तक हम लोगों को कोई बैठने बातचीत करने का जो अवसर नहीं दिया। हम लोग उसी का रिमाइंडर जो है देने के लिए आए हैं। हम लोग इस समय देख रहे हैं मजदूरों के अर्जित अधिकारों की कटौती की जा रही है। हमको मैनेजमेंट जगह जगह प्रताड़ित कर रही है। मजदूर अलग अलग ट्रेड यूनियन के हिसाब से दूरी जो है बन गए जो है, इसलिए मजदूर का आंदोलन जो है प्रभावित हो रहा है और इसका फ़ायदा जो है मैनेजमेंट उठा रही है। रेगुलराइजेशन का कार्य जो है, जो जहां काम करते हैं उनको उसी जगह पर जो है डिजिग्नेशन करना चाहिए। नहीं डिजिग्नेशन करिएगा, दूसरा कॉलेज में जाएगा तो फिर उसको उसी ढंग से लिया जाएगा। इस तरह का मैनेजमेंट प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हो। जो प्रमोशन के लायक लोग हैं उनका प्रमोशन जो है देने होगा। मैनेजमेंट एसएलपी का जब टाइम आता है तो उपग्रेड में जाकर रेगुलराइजेशन कर देती है। आर्थिक कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। एरियर जो है मिलने वाला है, स्लिप जो है नहीं दिया। कंपनी का जो क्वार्टर है उसका रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा है। कंपनी आवास में जो नहीं रहते हैं उनको क्वार्टर भाड़ा की बात करते हैं, वो भी जो है नहीं मिल रहा है। खदान में सुरक्षा का अच्छा बंदोबस्त नहीं है। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग आज सातग्राम इंक्लाइन में मैनेजमेंट को इस बात को कहने आए हैं कि हम लोग अभी तक इस बात को जानते थे कि ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट का एक अंग है। मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन मिलकर के कंपनी का संचालन जो करती है। हम मजदूर की बातों को आपके टेबल तक पहुंचाते हैं। आप जो है सहृदय बन करके उनकी बातों को सुनिए। जो आपके लेवल में है उसका समाधान करिए, जो आपके लेवल में नहीं है अपने उच्चाधिकारी को दीजिए। हम भी अपने संगठन के कर्मियों को जो है देंगे जो है। तो इसी सवाल के ऊपर जो हम लोग आए हैं कि मैनेजमेंट मजदूर की डिमांड को सुने, उस पर बातचीत करे, अन्यथा हम लोग आगामी दिन में धरना प्रदर्शन जो है करने का सिद्धांत लेंगे और इसका पूरा दायित्व जो मैनेजमेंट का होगा। आपका नाम? मैं जय कृष्ण मिश्रा, कोलेरी मधु सभा AITC सातग्राम इंक्लाइन। इस मौके पर गोपाल शरण ओझा, सुशील कुमार दे, अलमगीर मियां, श्रवण सिंह, लिंगराज प्रधान, मिर्जा गालिब, मनोज कुमार प्रसाद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आज इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे के अवसर पर रानीगंज फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली रानीगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पंजाबी मोड़ होते हुए दुर्गापुर की ओर रवाना हुआ। रैली में रानीगंज अंचल के समस्त फोटोग्राफर्स लोग मौजूद रहे। भारत माता के जय, भारत माता के जय। रानीगंज फोटोग्राफी एसोसिएशन रानीगंज एसोसिएशन से हम लोग बाइक रैली कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब कोई कैमरामैन जितना भी है जो हम लोग से जुड़ा है वो तो ठीक है, जो जुड़ा हुआ नहीं है हम लोग चाहते हैं कि सब कोई हम लोग का ग्रुप का साथ जुड़े और कुछ अच्छा काम करने के लिए आज सब कोई शपथ ले। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, हिप हिप हुर्रे! रानीगंज फोटोग्राफी एसोसिएशन आज इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे के अवसर पर रानीगंज फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली रानीगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पंजाबी मोड़ होते हुए दुर्गापुर की ओर रवाना हुआ। रैली में रानीगंज अंचल के समस्त फोटोग्राफर्स लोग मौजूद रहे। भारत माता के जय, भारत माता के जय। रानीगंज फोटोग्राफी एसोसिएशन
रानीगंज एसोसिएशन से हम लोग बाइक रैली कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब कोई कैमरामैन जितना भी है जो हम लोग से जुड़ा है वो तो ठीक है, जो जुड़ा हुआ नहीं है हम लोग चाहते हैं कि सब कोई हम लोग का ग्रुप का साथ जुड़े और कुछ अच्छा काम करने के लिए आज सब कोई शपथ ले। वॉल फोटोग्राफी डे हिप हिप हुर्रे! रानीगंज फोटोग्राफी एसोसिएशन रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में अंजुमन भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शिक्षा जागरूकता पे किया गया। ये कार्यक्रम अंजुमन इमदाद वाहिनी या कारवाए अदब की तरफ से की गई। इस मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद सवरा, हेना खातून, नदीम सहवानी, बकार अहमद हाजी, अनबर मास्टर, कलीमुल्ला और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। इस मौके पर बच्चों ने शिक्षा की अहमियत के बारे में सिखाया गया और उनको बताया गया कि एक शिक्षा हमारे भविष्य को संवारने के लिए कितनी ज़रूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत और नात खानी के साथ हुई। इस बारे में डॉक्टर सवरा खातून हिना ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। दरअसल ये करियर काउंसलिंग के हवाले से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये जो बच्चे जो है राइडरलेस हैं, उनको पता नहीं कि कहाँ से यहाँ से चल के कहाँ जाना है। तो हम लोग जो है बहैसियत एजुकेशनिस्ट जो है एक खाना पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पता चले कि कहाँ जाना है और किस रास्ते में हमारी कामयाबी है, किस रास्ते में हम कामयाब नहीं होंगे। तो ये उसी तरह की मेन बात हो रही है और बच्चों को मोरल बूस्ट करना है कि तालीम के अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, अपने कौम को भी तरक्की दिलाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही वन एंड ओनली वन ऑप्शन है, वो तालीम, तालीम और तालीम। तो इसी हवाले से बातचीत हो रही है और दूसरा कोई भी अनदर अल्टीरियर मेथड कोई हमारा मोटिव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे भी दूसरे को मुकाबिल खड़ा होकर के और अपना जो है आवाज़ बुलंद कर सकें। तो मेरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद जो है बच्चों के अंदर ये जज्बा आएगा कि तालीम के ज़रिए जो है हम अपना खोया हुआ वक़ार जो है वापस कर सकें और दूसरों को बेहतर से बेहतर चीज़ दे सकें। हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। पूरे एजुकेशन पे आज आप लोग का फोकस है बस पूरा। रानीगंज पांचल में सर ये भी देखा गया, इसको लेकर आप लोग क्या बने? ये तो हमारे कमेटी के लोग बताएंगे, लेकिन आपने जो बात कही ये तो बहुत ही सीरियस इशू है। उस हवाले से भी काम होना चाहिए और उसमें सबसे पहले कदम जो है गार्जियन हजरात का है कि आप जो है अपने बच्चों की पूरी निगरानी अगर नहीं करेंगे तो जब आप उसकी तवज्जो नहीं देंगे तो दूसरे लोग उसको तवज्जो करके इल्ज़ाम कर लेंगे। और यही होता है जब बच्चे अपने माँ बाप के नहीं सुनते हैं तो दोस्तों के सुनते हैं और दूसरे लोगों के सुनते हैं, जो गलत माहौल में फंस जाते हैं। तो ये देखना होगा कि तमाम जो गार्जियन हजरात हैं वो कितना रिस्पॉन्सिबल है उनको। देखिए, अंजुमन इमदाद वाहमी बहुत ही कदीम तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन 52-53 साल इसको हो गए, 1969 का कायम किया हुआ है। तो काफ़ी पुराना अदारा है और ये समाजी अदारा है और इल्मी काम भी करता रहा है, लोगों की सरपरस्ती करता है। तो बहुत सारे अच्छे फलाही काम इसने किए हैं। कारवाने अदब को कायम हुए अभी सिर्फ मैं समझती हूँ कि 8 साल हुए, लेकिन कारवाने अदब ने भी अपनी एक पहचान बनाई है। तो इन दोनों अदारों ने मिलकर ये फैसला किया कि कैरियर काउंसलिंग और एजुकेशनल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम यहाँ पे किया जाए और उसके लिए यहाँ पे तलबा व तलबात को जमा किया जाए, जिसके लिए हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। टीचर्स हजरात भी मौजूद हैं, गार्जियन भी कुछ हैं और इनका बस यही करना है कि इनके अंदर बेदारी लाई जाए। इनको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा, उस रास्ते पे किस तरह से चलना होगा, उसके लिए हम लोगों को बहुत ही खुशनसीबी हमारी है कि डॉक्टर रियाज अहमद साहब मिल गए, जिनका ताल्लुक़ यूँ तो आसनसोल से है लेकिन फ़िलहाल वो शारजा में स्काई लाइन यूनिवर्सिटी में डीन के पोस्ट पे हैं, प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आज हम उन्हें यहाँ उनके बहुत टाइट शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त मांगकर हम उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और हमारी ये ख्वाहिश है इन दोनों ही अदारों की, कारवाने अदब और अंजुमन इमदाद वाहमी की, कि इनके हवाले से कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाए और कुछ अच्छे रास्ते पे चल लें और मंजिल को पा सकें। तो कारवाने अदब का ये सफ़र और अंजुमन इमदाद वाहमी का ये तालीमी सफ़र यकीनन कामयाब हो जाएगा और ये इन अदारों की जो खिदमात हैं वो यकीनन काबिल कबूल होंगी अगर कुछ बच्चे इनसे मोटिवेट होकर कुछ अच्छा कर पाते हैं। यही हमारा ये काम। मेरा नाम है साबिरा खातून है ना, मैं टीडीबी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।
आज रानीगंज लायंस क्लब में फिरे देखा एनजीओ का शुभारंभ किया गया। सामाजिक कार्य, बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा, उच्च उपज वाली खेती पर किसानों की शिक्षा को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण, नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर, छोटे छोटे आत्मनिर्भर गोष्ठी गठन कार्य में समस्या का समाधान, संचारी रोगों के बारे में नियमित रूप से जागरूकता प्रदान एवं चिकित्सा प्रदान करना ही एनजीओ का एकमात्र उद्देश्य है। आसनसोल रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष सामंतनंद महाराज जी एवं ACP2 श्रीमंत बैनर्जी द्वारा एनजीओ का शुभ उद्घाटन किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से रानीगंज अंचल के विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। वही संस्था की ओर से ट्रेजरर रानीगंज रेफरी एसोसिएशन नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन रंजीत रामदे एवं DPM अर्नब दत्त ने किया। दूसरी ओर ज्वाइंट कन्वेनर मैनाक मंडल संपादक विश्वरूप मुखर्जी, सभापति डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत सहित सभी सदस्य ने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया। ज्वाइंट कन्वेनर मैनाक मंडल संपादक विश्वरूप मुखर्जी, सभापति डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत, चीफ एडवाइजर डॉक्टर अनिर्वाण घोष सहित 1995 सियारसोल राज हाई स्कूल के सभी पूर्व छात्र एनजीओ फिरे देखा के सदस्यगण उपस्थित थे। স্বামীজি এবং এখানে যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজন রয়েছে তাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং এখানে যারা ফিরে দেখা ডক্টর সামন্ত স্যার এবং অন্যান্য ওনার যারা কলিগস রয়েছেন এবং যারা ব্যাচমেট রয়েছে ওনার সবাইকে আমি এখানে আমাকে আসতে বলার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখানে আসার পর আমি ACP সেন্ট্রাল 2 হয়ে আসলেও আমি এতক্ষণ ডক্টর সামন্তর ক্লাসমেট হিসেবেই নিজেকে আখ্যাত করছিলাম। খুব ভালো লাগছিল, এত ভালো লাগছিল, দেখছিলাম কিছু ছেলে ফিরে দেখতে চাইছে। সব থেকে বড় কথা, আমরা কি সত্যি এখন ফিরে দেখি? কেউই আমরা দেখি না। এই যে আপনারা ফিরে দেখতে চাইছেন, এটা যে কত বড় দায়িত্ব আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এটা আপনাদের ঘাড়ে প্রচুর দায়িত্ব পড়ছে। এবং আমাদের এই সমাজে 10টা লোক যদি দায়িত্ব নেয়, 20টা লোক পিছন দিক থেকে টেনে ধরে। 10 জন হলে একটা ক্লাব হয়, 20 জন হলে দুটো হয়। তারপর এইখানে ফিরে দেখা প্রতিটি सियारसोल बाबूपाड़ा जो सोसाइटी तार प्रेसिडेंट है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जामुड़िया के समाज सेवी बुलेट मंडल ने जामुड़िया विधानसभा के बोगड़ा प्राथमिक विद्यालय एवं बोगड़ा कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को फल वितरित कर अपना जन्मदिन मनाया। बुलेट मंडल ने कहा कि अपने जन्मदिन के अवसर पर मैंने सबसे पहले घाघर बुढ़ी मंदिर में पूजा की, फिर मैंने 2 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे को केले और सेब वितरित किया। इस दौरान सिटी केबल ऑपरेटर के निदेशक जयदीप मुखर्जी और पार्थो गनी भी मौजूद थे। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव दिलीप सौरभ भी मौजूद रहे। इस खास दिन पर स्कूल के छात्रों को खुशी देने के लिए एक छोटी सी पहल है। लोगों का सहयोग मिला तो मैं आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य को करूंगा। बुलेट मंडल, आज আমার জন্মদিন, ঘরগুলোতে পুজো দিয়ে 2টো প্রাইমারি স্কুলে বাচ্চাদের আমরা ফল দিচ্ছি। এরকম অনেক জায়গায় প্রাইমারি স্কুলে দিয়েছি। আজকে এই দিনটাকে, বিশেষ দিনটাকে ঠিক করে নিয়েছি জন্মদিনে এই দিনেও ফল দেবো প্রাইমারি স্কুলে। আমার সহযোগী যারা আছেন, আপনার দিলীপ সরাই দুর্গাপতি এসেছেন, সিটি কেবলের ডাইরেক্টর জয়দীপ দা, হ্যাঁ সিটি কেবল আছেন ডাইরেক্টর পার্থঘাটি। কেন এই উদ্যোগ? বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে, যে তারাও স্কুলে আসুক, পড়াশোনা করুক। আজকে বিশেষ দিনে জন্মদিন বলে আজকে 2টো স্কুলকে বেছেছি, বগুড়া কলোনি আর বগুড়া গ্রামের প্রাথমিক অবৈতনিক স্কুল। প্রাইমারি স্কুলে আমরা কলা আপেল দিচ্ছি বাচ্চাদের। কেমন লাগলো? আমাদের সিটি কেবল থেকেও প্রচুর আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই আপনার জয়স বা আমফানে প্রচুর আমরা মেদিনীপুর সাইডে সাহায্য করেছি। আমরা বিগত দিনে আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো বিভিন্ন জায়গায়। তো আমাদের এই যদি যা কিছু বলবেন এর ব্যাপারে। বুলেটকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। বুলেট আরও সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, এইভাবে মানুষের সেবা করুক, এটা আমরা ঈশ্বরের কাছে কামনা করি এবং ওর হাত দিয়ে আরও ভালো ভালো কাজ হয়। ব্যাস। চেম্বার অফ কমার্স, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারি, হ্যাঁ বুলেটদা মানে ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই আমরা এইখানে আসতে হয়েছে জন্মদিনে এই স্কুলের সব বাচ্চাদেরকে ফল বিতরণের জন্য। হ্যাঁ, এই পারপাসের জন্যই আসা। ঠিক। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी।
अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आएं और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। डेंगू की वजह से अपनी जान गंवाने वाले अविनाश साव के पिता वीरेंद्र साव ने आसनसोल जिला अस्पताल पर उनके बेटे के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अपने पैरों से चलकर अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन अस्पताल में भर्ती के बाद उसका कोई भी इलाज ठीक से नहीं किया गया। सिर्फ स्लाइन लगाकर उसे रख दिया गया। उसकी हालत जब बिगड़ने लगी तब भी उसको इंजेक्शन तक देने के लिए कोई नर्स नहीं थी। यहाँ तक कि जब उसको अन्य किसी अस्पताल ले जाने के लिए उसे एम्बुलेंस तक लाया जा रहा था तब स्ट्रेचर को धक्का देने के लिए भी कोई नहीं खड़ा था और उनके भतीजे ने मिलकर स्ट्रेचर को धक्का दिया और अपने बेटे को एम्बुलेंस में चढ़ाया। इसके बाद बेटे को लेकर वह लोग कई अस्पतालों में गए, लेकिन किसी ने भी उनके बेटे को भर्ती नहीं किया। वे अपने बेटे को लेकर आसनसोल, दुर्गापुर के विभिन्न अस्पतालों में भटकते रहे। आखिरकार दुर्गापुर के एक अस्पताल में उनका बेटा भर्ती गया, लेकिन वहां पे उसकी अवस्था बिगड़ती गई। वह अपने बेटे को लेकर आसनसोल, दुर्गापुर के विभिन्न अस्पतालों में भटकते रहे। आखिरकार दुर्गापुर के एक अस्पताल में उसको भर्ती किया गया, लेकिन वहां पे स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं लिया गया, जबकि वहां पर लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य साथी कार्ड पर यहां पे इलाज होगा। उनके पिता ने कहा कि उन्होंने अपने जेब से 46,000 भरे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बेटे को बचाया नहीं जा सका। कि जो मेरा बेटा जो सुबह फिट था, मोटा मोटी उसको 11 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसको सिर्फ सिलाइन चढ़ाया गया। हम लोग देखिए उतना पढ़ल लिखल नहीं है, मगर हम जानते हैं वो अपना रिपोर्ट में क्या लिखा हम नहीं जानते हैं दादा, ठीक है। मगर इतना हम बोल सकते हैं कि वो लड़का को वो अपना पैर से गया था हॉस्पिटल, मेरा भतीजा भर्ती कराया, उसको सिर्फ पानी चढ़ाया गया, उसको एक तो इंजेक्शन तक कुछ नहीं करा गया। 11 बजे उसको भर्ती किया गया, 2 बजे तक लड़का फिट था। उसका बाद अचानक वो बेहोश हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया हॉस्पिटल कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। अचानक जब मेरा भतीजा बोला कि पापा मेरा अविनाश भैया सेंसलेस हो गया, तब हम 2 भाई दौड़े हैं और उसका बाद उसका वहाँ का ऐसा पोजीशन है हॉस्पिटल का, सुपर स्पेशलिस्ट लिखा हुआ, कोई काम का नहीं है। वहाँ पे जो नर्स है किसी काम का नहीं है, एक भी डॉक्टर कोई काम का नहीं है। हम बोलते मेरा जवान बच्चा चला गया, उसका दायित्व कौन लेगा। 5 घंटा मेरा हॉस्पिटल में रखा, सुपर स्पेशलिस्ट आसनसोल मेगा सिटी, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करता। वहाँ का नर्स मोटा मोटा होके वो लोग इंजेक्शन कुछ तक नहीं करने आता है। मेरा बच्चा चला गया। हम उसका बाद जब हम वहाँ से दौड़े हैं तो पहले गए स्ट्रक्चर लेने वाला, पकड़ने वाला वहाँ आदमी नहीं, हम और भतीजा स्ट्रक्चर लेके बेटा को लेके गए हैं एम्बुलेंस में। वहाँ उसके बाद बनपुर गए, वहाँ नहीं लिया, दुर्गापुर गौरी देवी गए नहीं लिया, हेल्थ वर्ल्ड नहीं लिया, मिशन नहीं लिया। उसके बाद हम लोग अन्नपूर्णा में जो भर्ती कराए हैं वहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड का ही दिया हुआ है, उसका भी अप्लाई नहीं हुआ। हम लोग अपना नगद पैसा दे के 46,000 रुपया, फिर भी हम अपना बच्चा को बचा नहीं पाए। ये बहुत दुखद का बात है। ये हमारा लिए बात नहीं, पूरा आसनसोल के लिए दुखद का बात है, समझे। और यहाँ जो वार्ड है हम लोग को, वह जो वार्ड है यहाँ 3 दिन से पानी का समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं। जो है हम ओरिजिनल बोलेंगे। हम बोलना चाहते हैं कि जो बोला गया मेरा घर में लार्वा मिला है या जो भी मिला है, आप हमको वीडियो दिखाएं। मेरा घर में कोई मर्द आदमी था, बच्चा कच्चा था, आप अपना बोल दिए कि ये मिला वो मिला। मेरा घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मेरा सेंटरिंग का पाटा है, सब कुछ हम सब मानते हैं, मगर आप लोग कैसे बोल दिए। हम तो आप साइन कराएं कि मेरा घर में ये है या जो भी है। आज मेरा बच्चा चला गया, हंसता खेलता बच्चा, ब्रिलियंट स्टूडेंट था बीबी कॉलेज का, उसका सर लोग आए, 10 तो बच्चा छात्र भी आए मेरा घर में, वो लोग इतना दुखद है। हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा चला गया मगर किसी और का बच्चा चला जाए। ये जो हुआ है बहुत खराब बात है, बहुत ही दुखद है। मेरा तो चला गया, मेरा परिवार अंधकार हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलिए क्या होगा। मेरा नाम वीरेंद्र साव है।
हम चाहते हैं कि इसका कड़ा स्टेप लिया जाए और मेरा बच्चा का कुछ जो भी बनता है इसका मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, अविनाश का जो 2 दिन पहले डेंगू के कारण जो मौत हुआ है, आज हम उनके घर पे आए, उनके चाचा जी आए हैं, उनके पिताजी से हम लोग मिले। बहुत दुख का बात है, ये लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोग आसनसोल जिला हॉस्पिटल में गए थे, स्ट्रेचर के लिए वहाँ पे स्टाफ नहीं है तो डॉक्टर क्या मिलेगा। 5 घंटा वहाँ रखने के बाद में कुछ नहीं होता है, खाली स्लाइन चढ़ाया गया, इसके बाद कुछ नहीं। इसको जिला हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। डेंगू के कारण यहाँ पे पीछे के वो अभी आपको चलिएगा, कैमरा ले जाइएगा, उस गली को आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया, उसमें पानी भरा हुआ अभी हम देख कर आ रहे हैं। उसका नाम यहाँ के लोगों ने रखा है कि डेंगू पुकुर। शर्म आना चाहिए आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे हुए और यहाँ के काउंसलर को कि किस तरीके से गंदगी पूरे इलाके पे फैला हुआ है। ग्रीन आसनसोल और क्लीन आसनसोल का ये लोग नाम लेकर करोड़ों करोड़ों रुपया टैक्स का पैसा लोगों का बर्बाद किए हैं और कुछ नहीं है। हम लोग इनके परिवार के साथ हैं। ये घटना वाकई बहुत अजीब घटना है। आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हाथ जोड़कर हम लोग विनती करेंगे कि मेरे इलाके का क्या दूर दूर का कोई भी बच्चा इस तरह का घटना में ना हो। डेंगू के कारण डेंगू का बीमारी किसी को ना फैले, जल्द से जल्द कॉर्पोरेशन इसका कड़ा एक्शन पे उतरे। विपक्ष के तरफ से हम लोग कॉर्पोरेशन के साथ हैं, लेकिन बाजाब्ता साफ सफाई में आप पूरा ध्यान दीजिए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करे 9432546328 नंबर पे। पांडवेश्वर विधानसभा के अंतर्गत बहुला ग्राम पंचायत के परासकोल हनुमान मंदिर पूजा कमेटी की ओर से महाशिव चर्चा और रुद्राभिषेक पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिव चर्चा और रुद्राभिषेक पूजन को सफल बनाने में यजमान के रूप में राम जीवन विश्वकर्मा, उनकी धर्मपत्नी प्रियंका देवी, संजय बर्णवाल, धर्मपत्नी उषा देवी पूजन मंडप पर बैठे दिखे। इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए रविंद्र यादव और समस्त पूजा कमेटी के सदस्यगण ने सहयोग किया। यज्ञ में मुख्य पुरोहित के रूप में शंकरानंद पांडे ने रुद्राभिषेक पूजन किया। इसके अलावा शिव चर्चा में भाग लेने आए शिव भक्त काजल देवी भी मौजूद रहे। कमेटी के तरफ से अभिषेक भोले बाबा का अभिषेक का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद अभिषेक होने के बाद हम लोग शिव चर्चा का प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिसमें बाहर से भी आदमी आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि सभी इसमें इन्वॉल्व हो करके किसी तरह सफल करें, पूजा को सफल करें। ये प्रोग्राम लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? बस ये तो अगला साल हुआ है, उद्घाटन हुआ है शिव मंदिर का। उसके बाद इस साल हम लोग अभिषेक का प्रोग्राम। संजय लाल सावन के उपलक्ष्य में महारुद्र अभिषेक का हम लोग ये आयोजन किया गया है। साथ में ही हमारे बगल में जगशाला है, जगशाला में शिव चर्चा का प्रोग्राम किया गया है। और साथ में ही तमाम परासकोल के लोगों को प्रसाद खिलाने का काम किया जा रहा है। ये किनका आयोजन से किया जा रहा प्रोग्राम? परासकोल के तमाम हम लोग जो पूजा कमेटी के लोग हैं, सभी का सहयोग लेकर के इस प्रोग्राम को हम लोग आगे किए हैं और आगे करते हैं और आगे करते रहेंगे। आज जो कार्यक्रम है, उससे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना सब लोग मिलकर एक साथ जुट होकर के जो पूजा हम लोग करते हैं, ये परासकोल के माहौल शांति हमेशा बना रहे, इसी का संदेश देकर के हम लोग सबसे पूजा करते हैं। आपका नाम? रामजीवन कुमार विश्वकर्मा, परासकोल कोलेरी का छोटा सा एक सदस्य। ये 24 घंटा का? नहीं, ये आपका 4-5 घंटा का। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे।
तो फिर देर किस बात की है। जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096।